Welcome students. So in today's class we are going to learn about significant figures and order of magnitude. So when we are understanding about significant figures, let's consider an example. When we are measuring some length in a small meter scale, at that time particularly जो सबसे जो छोटा डिस्टेंस होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है वो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. So particularly when we are looking for the significant figures, तो significant figures क्या होते हैं? The number of digits in a measurement about which we are certain plus one additional digit and the first one about which we are not certain, that is called significant figures. So there are some certain rules about significant figures. So let's see the first rule. All non-zero digits are significant. See here. So जो पर्टिकुलर वैल्यू हमें दी है उसमें जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ वैल्यू 4827, सो इस एग्जाम्पल में all these numbers, all these digits are non-zero digits. So there are total number of 4 significant figures. Okay. So in next example, if there is a 12.367, in this case you can see here all these digits are non-zero digits. So therefore the total number of significant figures are 5. If there is a number 52, so in this case there are total number of 2 significant figures. So what is our first rule? All non-zero digits are significant. Okay, so let's see second one. Trapped zeros are significant. Okay, so what is basically trapped zero? जो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे उन डिजिट्स को हम क्या, उन जीरोस को हम क्या कहेंगे, ट्रैप्ड जीरोस. सो यू कैन सी हियर इफ हियर इज नंबर 108. सो ये जो जीरो है ये ट्रैप्ड जीरो है क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है. सो ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट. सो बेसिकली देयर आर 1 2 3. सो देयर आर 3 significant figures. Let's see in another example. If 20079, so in this case you can see here these two zeros are trapped zeros. So therefore 1 2 3 4 5, the total number of significant figures are here 5. Okay, let's see another example. 7008. So in this case there are these two zeros which are trapped zeros. What is basically here trapped zeros? इस तरह के जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं. यहाँ पे 7 and 8 नॉन जीरो डिजिट है, वहाँ पे दो जो जीरोज है वो इनके बीच में आए हैं. सो इसलिए वो ट्रैप्ड जीरो है. सो वी हैव टू काउंट दैट अल्सो. ये भी हम मेजर करेंगे. सो 1 2 3 4. सो देयर आर टोटल 4 significant figures are there. So in this case we can take another example. If we have like this 20.3, so in that case 1 2 3. So number of significant figures are 3. So let's see here 600.08. So all these zeros are trapped zeros. Therefore we have to count all these digits 1 2 3 4 5. So there are total 5 significant figures. So it's very easy to understand
that you have to understand there are certain laws related to the significant figures. जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि all non-zero digits are significant. What is our second law? Trapped zeros are significant. Okay, so let's move for the third law. So our third law is जो स्टार्टिंग के जीरो होंगे ओके उसे हम क्या कहेंगे? इनिशियल जीरोज. ओके, इनिशियल जीरोज को कभी कभी बुक में हम देखते हैं लीडिंग जीरोज. जो स्टार्टिंग में जो जीरो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? लीडिंग जीरोज, इनिशियल जीरोज. और यू कैन से दैट लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, ओके. सो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है जो इनिशियल जीरोज है उसे हम कह सकते हैं लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट. सो इन केस ऑफ लेट्स सी हियर 0.0081. सो ये जो जीरो है ये इनिशियल जीरो है, ये इनिशियल जीरो है, ये इनिशियल जीरो है, ये सब इनिशियल जीरो है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर करेंगे. सो देयर आर बेसिकली 2 डिजिट्स विच आर significant. So you can say that example for 0.081 there are only 2 digits which are significant. So let's see here 0, 7, 2, 3. So in this case you can see this 0 is initial 0. So this is not significant. So we have to not count this number. So we can see here only 3 digits are significant. Okay. So we can see another example where let's take 0.007. okay, 0.007. so here also these initial zeros are we have to not count, so directly you can say here is a one significant figure. So let's say another example 0.0205. so in this case you can see ये जो दो जीरो है ये इनिशियल जीरो है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जीरो है ये ट्रैप्ड जीरो है, तो इसलिए इसे काउंट करेंगे 1 2 3. सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3 हियर. टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो कितने हैं? यहाँ पे 3 है. सो वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो बेसिकली इनिशियल जीरोज है उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे. नेक्स्ट वन, जो ये इनिशियल जीरोज है उसके जो अपोजिट होता है वो क्या होगा? एंडिंग जीरोज. ओके, नंबर 4 जो लॉ है एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट. एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट if they appear after decimal point. ओके, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके बाद जब जीरो जाएंगे उसे हम बेसिकली सी हियर एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल. लेट्स सी हियर यहाँ पे है 20.0. सो इस केस में हम देख सकते हैं 20.0 ये नंबर है. ओके, तो यहाँ पे ये जो जीरो है ये जीरो किस तरह का है? एंडिंग जीरो है. सो इसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है. क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली इस लॉ में मेंशन किया है ending zeros are significant if they appear after decimal. so ये डेसिमल के बाद आया है तो उसे हम कंसीडर करेंगे ही. so basically there are total 3 significant numbers. कितने हैं significant numbers? 3 है. okay, so let's see another example. if there is a 708.00, so we have to count these zeros also, because these zeros are appearing after decimal point. So number of significant figures are 1 2 3 4 5.
So these are the 5 significant figures are here, and I will give another example. If there is a 0.00, 0.003020, so in such a case you can see here, ये जो 0 है ये इनिशियल 0 है. हमने जो थर्ड लॉ देखा था उसमें देखा है कि ये इनिशियल 0 है, उसे हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसे हम कंसीडर करेंगे. सो 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर 4. यहाँ पे 20.0 दिया है, लेकिन जब 200 मैंने दिया होगा तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज हियर. इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है. हियर इज अ डेसिमल पॉइंट, हियर इज अ डेसिमल पॉइंट, हियर इज अ डेसिमल पॉइंट, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है. 200 के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ वो 1 होगा. व्हाट अबाउट 1500? सो इन दिस केस देयर इज अ, ये जो 2 डिजिट है, ये जो 20 है, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे. जो नॉन जीरो डिजिट है, सिर्फ यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है. ओके होगा. सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड ये जो वैल्यूज है, इस तरह से हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर क्यों कह रहे हैं. सी हियर, लेट्स कंसीडर इफ देयर इज अ रोड. ओके, यहाँ पे रोड है. अभी मैंने कंसीडर किया, इफ समवन इज आस्किंग मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस रोड, सो आफ्टर ऑब्जर्विंग आई कैन से लेट्स इट विल बी 200 मीटर. ओके, मैंने क्या कहा, इसे 200 मीटर है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे 200 मीटर हमने इसे कंसीडर किया, लेकिन इसका 200 मीटर ही लेंथ होगा क्या? नहीं, ये तो हमने एज्यूम किया है. इसका लेंथ क्या हो सकता है? 199 मीटर, 198 मीटर, 195 मीटर, कुछ भी हो सकता है. हम सर्टन नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं रह सकते 200 पे. तो हम सर्टन किस पे रह सकते? हम जो भरोसा किस पे रख सकते हैं? सिर्फ हम 2 पे भरोसा रख सकते हैं, ये इस पे नहीं रख सकते. So in this way you can understand number of significant figures in a particular case. So let's see some example from another book. Okay. So I will give some example. So we have to find the number of significant figure here. So here is a 24.6, 4.877, 4.877 into 10 to the power 9, 7.89 into 10 to the power minus 6, 0.0035. Okay, so here we have to find the number of significant figures. Okay, so very easy. See here, significant figures देखते समय हमने देखा था कि जो 4 मैंने एक इजी लॉ आपको बताया है, उसका आप यूज करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हर एक केस में फाइंड कर सकते हैं. सी हियर 24.6. So here 24.6 is here. So basically you can check here, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? 3 हो गए, क्योंकि ऑल दीज डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स. यहाँ पे हम देखते हैं 4.877 इंटू 10 टू द पावर 9. सो यहाँ भी ये जो 10 टू द पावर 9 है उसको हमें कुछ कंसिडर नहीं करने का है, उसे हमें मेंशन नहीं करने का है, सिर्फ इस नंबर को फोकस करने का है. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 हियर, हियर इज अ 3, एंड इन दिस केस हमने देखा था जो इनिशियल जीरोज है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते हैं. सो यहाँ पे सिर्फ 2 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, सो वेरी इजी एग्जांपल्स वाज देयर. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, सम अनदर एग्जांपल्स. Okay, 0.05718, 0.05718, 93.26, 2.35, 10 to the power minus 19, 1.35,
3725 into 10 to the power 9. So we have to find the number of significant figures. Okay, see here. यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हैं ये जो इनिशियल जीरोज है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. हियर इज ऑल्सो 4 बिकॉज ऑल दीज 4 डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स. यहाँ पे है ये नॉन जीरो डिजिट्स है, सो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे डायरेक्टली आप काउंट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5. So these are the very easy example from which you can understand. Okay, so all these examples are about significant figures. Okay, जो अभी पर्टिकुलर जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे. See here, 0.003 meter square. Next one is 0.1250 ग्राम सेंटीमीटर -2, ये यूनिट्स है. ओके, 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर. नेक्स्ट वन इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलोम्ब. And next one is 9.1 into 10 to the power -31 kilogram. So here we have to find the number of significant figures. Okay, so very easy examples. Just try to remember our rules which we explained earlier. See here, 0.003 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर है यूनिट है, सिर्फ फोकस हियर जस्ट 0.003. यहाँ पे जो इनिशियल जीरोज है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 हियर. इन दिस केस यू कैन सी हियर, ये जो जीरो है ये जो पॉइंट के बाद आया है तो इसलिए हमें उसे काउंट करना पड़ेगा. 1 2 3 4 ये इनिशियल है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 हियर. हियर डायरेक्टली यू हैव टू राइट 2. ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 2 है यहाँ पे 2 है. सो वेरी इजी कंसेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, so now let's move on to the next concept, that is order of magnitude. अभी हम जो next concept है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, that is order of magnitude. See here, another interesting concept is there, order of magnitude. Okay, order of magnitude. So what is basically order of magnitude? See here, जब हम particularly एक आधी वैल्यू लिखते हैं, see first understand the example. यहाँ पे 2 इंटू 10 to the power 1 लिखा है. ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा है 2 इंटू 10 to the power 2 लिखा है. तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं जो वैल्यू जो ज़्यादा बड़ा है वो कौन सा है, 2 इंटू 10 to the power 2. ये वैल्यू क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर इस नंबर से ज़्यादा है. ये जो नंबर है 2, ये ग्रेटर है देन 1. सो देयरफॉर दिस वैल्यू इज ग्रेटर. सो ये जो 10 का पावर वो डिसाइड करता है पर्टिकुलरली उस वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है. ओके, सो इफ आई हैव गिवन यू, लेट्स टेक एग्जांपल 51 एंड अनदर वन इज 51. ओके, 513. And here is, let's consider there is a 10 to the power 1, and here is a consider, here is a 10 to the power -3. So which value is bigger? कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है? आप इसे देखेंगे और इसे देखेंगे तो ये बड़ी कहेंगे, लेकिन that will be wrong. We have to check this. ये पावर कौन सा है? सो यहाँ पे तो -3 है, सो दिस पॉइंट विल बी हियर. सो वैल्यू कौन सा बड़ा होगा, ये होगा. सो ये जो नंबर का जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं
or in case you are looking for any particular number, the value of that number depends upon the power of that 10, and that power of 10 is nothing but what? Order of magnitude. So very easy concept. From this you can understand that directly. So first I will write the definition of this. The magnitude of any physical quantity, see here, the magnitude of any physical quantity can be expressed in the form a into 10 to the power n. जो पर्टिकुलर एक आधी क्वांटिटी है, the magnitude of any physical quantity can be expressed in the form a into 10 to the power n, where a is a number such that उसका वैल्यू किस तरह से होना चाहिए? a should be greater or equal to 0.5 and less than 5. सबसे important condition, the value of a that will be greater or equal to 0.5 and less than 5. Okay, where n is called, कहाँ है n हमारा? ये जो n है स्मॉल n. ओके, वेयर n इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो वेरी इजी कंसेप्ट. फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन केयरफुली. So what is here order of magnitude? The magnitude of any physical quantity can be expressed in the form a into 10 to the power small n. Okay, that small n is order of magnitude. A into 10 to the power n, where a is a number. ये a क्या है? एक इस तरह का नंबर है such that उसका वैल्यू होना चाहिए that a should be greater or equal to 0.5 and less than 5, where n is called order of magnitude. So very easy concept. So here let's see and some example. Okay, सबसे जो important है यहाँ पे, सबसे important यहाँ पे जो ये वैल्यू है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. See here, the magnitude of any physical quantity can be expressed in the form of, किस तरह के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं? a into 10 to the power n. a into 10 to the power n. यहाँ पे जो a के लिए कंडीशन है वो क्या है? a should be greater than, ये तो मालूम है हमें, a should be greater than, लेकिन यहाँ इस तरह का साइन है तो उसे हम क्या रेट करेंगे? a is greater or equal to 0.5. मीन्स a का वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और इन केस 0.5 होगा तो भी चलेगा, इसका ये मतलब है. एंड लेस देन 5. सो वेरी इजी. The magnitude of any physical quantity can be expressed in the form of a into 10 to the power small n, where a should be greater or equal to 0.5 and less than 5. और उस समय जो पावर 10 का होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. दैट टाइम जो n होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. Okay, sorry, order of magnitude. So very easy concept. Here you have to understand. Let's take an example. Here is 2 into 10 to the power 5 is there. So you can see here a into 10 to the power n के फॉर्म में हमें देखना है. a का वैल्यू हमें चेक करना है 0.5 लेस और इक्वल टू a लेस देन 5. ये a का जो वैल्यू है 0.5 के और 5 के बीच में है, क्या है? तो बेसिकली ये जो है नंबर पर्टिकुलरली गिवन एक फॉर्म में है. तो इस तरह से हम देखते हैं इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली क्या होगा? ये फर्स्ट एग्जांपल वी आर लुकिंग. सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? 5 होगा. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 होगा. सी हियर. ओके, सो वेरी इजी. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर दिस.
see here, let's consider जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. ओके, ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो वी हैव टू फर्स्ट चेक दिस वैल्यू is in the form of a into 10 to the power n. Second example, and here the value of a should be greater or equal to 0.5 and less than 5. a का वैल्यू तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, 0.5 की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. Okay, order of magnitude is 10 to the power minus 19. Finish. Very easy. Okay, 10 to the power minus 19. Let's see some example. Radius of Earth is given if 6,400 kilometer. See here. In third case, if radius of Earth, ओके, आर से हम डिनोट कर रहे हैं, 6,400 किलोमीटर है. लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर. मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 6400 किलोमीटर के लिए क्या लगाते हैं हम? 10 to the power 3. 1 किलोमीटर 10 to the power 3 मीटर. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 to the power 3 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. फर्स्ट हमने क्या किया है? किलोमीटर का कन्वर्जन मीटर में किया है. ओके, सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें निकालने का है. बेसिकली दिस नंबर इज फार ग्रेटर देन 5. बहुत ही बड़ा है 5 से, उसे हम थोड़ा छोटा करेंगे. तो इसका डेसिमल पॉइंट किधर होता है? यहाँ पे होता है. उसे हम थोड़ा सिंपल यहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जब लेंगे तो ये भी 6, दैट इज ग्रेटर देन 5. सो वी हैव टू टेक दिस नंबर हियर. हियर इज अ डेसिमल पॉइंट. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है 6400.00 है, तो उसे यहाँ लाएंगे 0.64000. ओके, कितने डिजिट से हमने छोटा किया है उसको? 4 डिजिट से छोटा किया है, 4 डिजिट से. ओके, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, वो उसे हमने यहाँ पे लाया है. सो 4 डिजिट से नंबर छोटा करने के बाद पावर 4 डिजिट से आपको बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज 10 to the power 7 मीटर. सो नाउ यू कैन चेक हियर दिस नंबर. ओके, दिस नंबर is in the form of a into 10 to the power n and where the value of a is in between of 5 and 0.5. ये जो वैल्यू है, जो हमारा कंडीशन है, उसे सेटिस्फाई करती है. सो बेसिकली हियर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7. यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 7 है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. See, 86,400 second. 86,400 second, that is the total second in one day. जो वन डे क्या होता है? 24 आवर. 24 को हम जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नंबर ऑफ सेकंड्स इन वन डे 24 आवर, दैट इज 86,400 सेकंड. उसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का है. तो पॉइंट यहाँ पे होगा, उसे हम यहाँ लाएंगे. So this will be 0.86400. So इसे हमने 5 डिजिट से स्मॉल किया है, तो हमें 5 डिजिट से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. So our order of magnitude will be 5. कितना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 5. You have to write that order of magnitude is 5. Okay. So this was the example. Let's see next one. 6.673 into 10 to the power minus 11. ये कैपिटल जी का वैल्यू है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, उसका जो वैल्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में है, वो यूनिट है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, सो दैट इज ग्रेटर देन 5. तो उसे हम क्या करेंगे? 0.6673. इसको हमने क्या किया है? एक डिजिट से छोटा किया है, तो उसे एक डिजिट से हम बढ़ाएंगे.
So 10 to the power minus 10 is greater than 10 to the power minus 11. So जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, -10. ये जो 10 का पावर होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, उसके लिए हमारा ए का कंडीशन ध्यान में आपको रखना है. लेकिन क्या होगा जब पर्टिकुलरली सिर्फ हमें एक ही वैल्यू दिया है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, इफ गिवन इज ओनली 2 इज गिवन. अभी ये जो 2 दिया है इसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का है. सो फर्स्ट वी हैव टू चेक दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 टू द पावर n. तो उसे इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा. सो हियर यू कैन राइट दिस a इंटू 10 टू द पावर 0. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड 10 टू द पावर 2 क्या होता है, 100 होता है. 10 टू द पावर 1 क्या होता है, 10 होता है. और 10 टू द पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है. सो जब हम 10 टू द पावर 0 को 1 कहते हैं, सो 1 से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो नंबर दिया था हमें, जो नंबर क्या दिया था, 2 दिया था, उसे ही मैंने इस फॉर्म में लिखा है. तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, हियर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज 0. कितना होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 0. लेट्स सी इफ द नंबर इज ओनली 5. See here, the number is, carefully now, the number is 5. So you have to find the order of magnitude. So यहाँ पे हमें कंडीशन मालूम है. A के लिए कंडीशन क्या है, A should be greater or equal to 0.5 and less than 5. So in this case I can see here, ये तो 5 जो नंबर है इससे तो हमारा A का वैल्यू छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो पर्टिकुलर 5 है तो उसे हम नहीं लिख सकते, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. So I will write this as 0.5. इसे हमने यहाँ पे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यहाँ होता है, क्योंकि 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5.00 मीन्स डेसिमल पॉइंट इज हियर. सो यू कैन टेक दिस एट लेफ्ट साइड. तो हमने एक डिजिट से उसे स्मॉल किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिजिट से बढ़ाएंगे. लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर किस तरह का चाहिए, a शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 5. सी हियर, a का वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये जो सिंबल है ये इक्वल का, ये अभी हमें इस एग्जाम्पल में यूज हो रहा है. a का वैल्यू 0.5 के इक्वल भी होगा तो भी चलता है. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 1. क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 1. सो आई विल गिव नाउ सम एग्जाम्पल टू सॉल्व यू एंड यू हैव टू check the correct value for it. See here, if the given is 9.11 10 to the power minus 31 kilogram, so you have to find the order of magnitude of this and write in the our comment section of YouTube. So next example is 4 into 10 to the power 2. Okay, that is meter. And let's see, next one is 9.80665. Okay, meter per second square. So for these 3 examples you have to find the order of magnitude and write in the comment section. जो हमारा YouTube का comment box है नीचे, उसमें आप इस वीडियो के नीचे ही इसके आंसर पोस्ट करो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.